आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट शुरू करने से पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारा ये वाला साइन होता है। डिटर्मिनेंट इट मीन्स दिस वन, ये हमारा डिटर्मिनेंट का साइन होता है। दिस इज नॉट मोड ऑफ एनी एलिमेंट, इट्स मीन डिटर्मिनेंट। We can write it as determinant of A, or we can write determinant of A, or we can write it like this also. It means determinant of any matrix. अब बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो फर्स्ट, अगर हमारा एक ही एलिमेंट है, इससे पहले बताऊंगी डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में निकलता है। अगर उसमें एक ही एलिमेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर 1 ही होता है। अगर 2 by 2 की मैट्रिक्स है, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2, A11, A12, A21, A22, तो इसका आंसर इसको एक्सपैंड करके आता है, दैट इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, A1, 1A22 माइनस, बीच में माइनस साइन रहेगा, this into this, A12 into A21। ये हमारी बात हुई 2 by 2 मैट्रिक्स की। अब हम आते हैं 3 by 3 पे। सपोज वी हैव फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 1 2 3 0 1 2 2 3 4। तो इसमें हम कोई भी एक पर्टिकुलर रो और या फिर पर्टिकुलर कॉलम लेके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। वी कैन यूज एनी रो, वी कैन यूज एनी कॉलम, लेकिन एक ही लेना है। सपोज आई एम टेकिंग दिस वन। पहले हम इसको नॉर्मल साइन से सॉल्व करेंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। Suppose I am expanding first row, so take this one element A11, then this row and this column is cancelled, और जो बाकी का हमारे एलिमेंट बचेंगे उसको 2 by 2 की तरह सॉल्व करेंगे। तो इट मीन्स दिस इंटू दिस A22, A33 माइनस दिस इंटू दिस A23, A32। उसके बाद हम सेकेंड एलिमेंट पे आते हैं। फर्स्ट रो को हम ले रहे थे, फर्स्ट रो का एक पार्ट हमने ले लिया। नाउ दिस वन आई एम टेकिंग दिस वन। अब रिमेंबर द साइन, अगर इन दोनों का सम इवन होता है तो प्लस साइन होता है, अगर इन दोनों का सम ओड होता है देन नेगेटिव साइन वी हैव टू टेक। नाउ A12, 2 plus 1 is 3, it means odd number, so we have to take negative sign. Now this row cancel, this column cancel, remaining 4 element, अब इनको expand करेंगे तो this into this A21, A33 minus A31, A23। उसके बाद हमारा लास्ट एलिमेंट बचा है प्लस A13। 1 और 3 4 इवन नंबर है, so we have to take the plus sign. Then दिस रो कैंसिल, दिस कॉलम कैंसिल। अब इनका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो दिस इंटू दिस A21, A32 माइनस A22, A31। तो ये हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट होगा 3 by 3 मैट्रिक्स के लिए। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। Our first question is 2, 4, minus 5, minus 1. We have to find determinant of this. A 2 by 2 matrix है, so this into this 2 into minus 1 minus this into this 4 into minus 1. तो 2 into minus 1 minus 2 minus minus plus 4 5s are 20. Now you can solve this. This is equal to plus का 18. This is our answer. Now come at second question. Cos theta minus sin theta, cos theta.
we have to find determinant of this, then this into this, cos into cos, cos square theta, minus sin theta, minus sin square theta. This cos square theta minus plus sin square theta, and this is our identity, this is equal to 1. So our answer is 1. Now come at the next question, question number 3. Question number 3 is x square minus x plus 1, x minus 1, x plus 1 and x plus 1. Now this into this, first we have to multiply this. X into x square, x cube, minus x into x, x square, x into 1, x. 1 से करेंगे तो x square minus x plus 1. Now this into this, negative sign आएगा. X plus 1, x minus 1, that is x square minus 1. So it's x cube minus x square plus x. We can solve it. X square cancel, plus x minus x cancel. So it's x cube plus 1 minus x square minus plus 1. It's x cube minus x square plus 2. This is our answer. Now come at next question. Question number 3. If A is a matrix 1, 2, 4, 2, then we have to show determinant of 2A is equal to 4 times of determinant of A. So our matrix A is 1, 2, 4, 2. First find 2A. 2A means इसको whole को we have to multiply by 2. 2, 4, 8, 4. Now we have to find determinant of 2A, that is equal to determinant of 2, 4, 8, 4. Now cross multiply, 2, 4 ja 8 minus this into this, 4, 8 ja 32. Minus करेंगे तो we will get it's minus 26. Sorry, 24. Now right side, if we take the right side, this is our left hand side. Now right hand side, that is 4 into determinant of A. 4 into determinant of A. That is equal to 4 into 1, 2, 4, 2. Now expand this, 4 into this into this, 2 minus 4 2s are 8. This is equal to 4 into minus 6, that is equal to minus 24. So both sides are equal. So we can show left hand side is equal to right hand side. Now come at next question. Question number 4. It's the 3 by 3 matrix. A is equal to 1 0 1 0 1 2 0 0 4, and we have to show 3 of A, determinant of 3A, that is equal to 27 times of determinant of A. First we have to find 3A, left hand side later. 3A, that is equal to 3 0 3 0 3 6 0 0 12. Multiply this by 3. Now we have to find determinant of 3A, that is equal to 3 0 3 0 3 6 0 0 12. अब हम इसमें कोई भी रो या कॉलम एक्सपैंड कर सकते हैं. मैं इसमें कॉलम 1 ले रही हूं क्योंकि यहाँ 2 0 है. 2 0 होता है तो उसको एक्सपैंड करना हमारा इजी होता है क्योंकि बाकी का आंसर 0 होता है. तो इट्स 3, कौन सा था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, तो प्लस साइन इनटू इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे. 12 3 36 माइनस 6 इंटू 0 0. उसके बाद मैं ये वाला ले रही हूं. ये एलिमेंट हमारा कौन सा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ओल्ड है तो नेगेटिव साइन आएगा. और यहाँ पे हमारा क्या है 0 इंटू ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल. अब ये वाले 4 एलिमेंट वी हैव टू टेक. तो 0 इंटू 12 0 माइनस 3 इंटू 0 0. नाउ नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इवन है तो हमारा प्लस साइन आएगा. 0 इंटू ये रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, 6 इंटू 0 0 माइनस 3 3 9. सो इट्स 3 इंटू 36, ये 0 ये 0. तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा.
ऐसे ही हम राइट साइड निकालेंगे. पहले हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, इसमें भी मैं क्या करूंगी, फर्स्ट कॉलम को एक्सपैंड करूंगी. 1 0 1 0 1 2 0 0 4. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, अगर मैं ये ले रही हूं तो 1 इंटू 4 माइनस 0, ये वाला ले रही हूं माइनस 0 इंटू, ये कैंसिल 0 माइनस 0. नाउ लास्ट वन इज, ये वाला ले रही हूं प्लस साइन आएगा, ये कैंसिल ये 0 माइनस 1 1 जा 1. तो इट्स 1 इंटू 4, ये 0 कंप्लीट 0, इट्स इक्वल टू 4. नाउ 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, 27 into determinant of a that is equal to 27 into 4. 4 7 जा 28, 2 4 2 जा 0. और इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 108. So left hand side is equal to right hand side. Now come at the next question. Question number 5. Evaluate the determinant. ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो. You can do yourself all the 4 parts because 3x3 मैट्रिक्स को इवेलुएट करना, उसका डिटरमिनेंट निकालना हमने अभी किया है इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 6 यू कैन ऑल्सो डू इट योरसेल्फ. नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x. 2 5 4 1, sorry, it's sign of determinant, that is equal to 2x 4 6 और x. अब मैट्रिक्स में हम क्या करते थे कि इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट नॉट इन द डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट में वी हैव टू सॉल्व द बोथ साइड. सो इट्स 2 into 1 2 minus 4 5 are 20. It's minus 18. Now solve the right hand side, that is equal to 2x into x, 2x square minus 4 6 ja 24, that is equal to 2x square minus 24. Now we have to solve this and we have to find the value of x. So it's 2x square is equal to minus 18, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का 24, 2x square is equal to 6, then 2 3, then x square is 3, then x is equal to plus minus में 3. So we can get our answer. Now second part. Two 4 3 5, that is equal to x 3 2x and 5. इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे. 2 5 जा 10 minus 3 4 जा 12 is equal to 5x minus 3 2 जा 6x. It's minus 2 is equal to minus x. Minus minus cancel, then x is equal to 2. This is our answer. Now next question is we have to find the value of x and we have to check our answer. X 18 to x, that is equal to 6 to 18 6. Now solve this. It's x square minus 36 is equal to 6 6 ja 36 minus 18 2 ja 36. It means x square minus 36 equal to 0. Then x square is equal to 36. So x is equal to plus minus का 6. So our option, that is option B, that is the correct. Now see page number 109, properties of determinant. First property is the value of determinant remains unchanged if its row and column are interchanged. किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें. Suppose we have a determinant 1 2 3 4 5 6 3 2 1.
अगर हम रो को कॉलम में चेंज कर देता, प्रॉपर्टीज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर इनकी रो को कॉलम में चेंज कर दूं तो इसका आंसर क्या होगा, सेम होगा। इट्स इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो बोथ आर द सेम। अगर हम इन दोनों को एक्सपैंड करते हैं देन आंसर विल बी सेम। नाउ कम एट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पेज नंबर 110, property number 2, if any two rows of a determinant are interchanged then sign of determinant change। अगर किसी दो रो और कॉलम किसी को भी अगर इंटरचेंज करते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। सपोज मैं इन दोनों रो को चेंज कर रही हूँ 4 5 6 1 2 3 3 2 1, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा दैट इज नेगेटिव ऑफ, सपोज इट्स ए, तो देन दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा अगर दो रो या कॉलम को चेंज करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज ऑन पेज नंबर 112, प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल मीन्स सेम हो, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। अगर कोई भी दो रो डिटरमिनेंट की हमारी इक्वल होती है, दो रो या कॉलम, एनी टू रो एनी टू कॉलम, सपोज डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 3 2 1, here two rows are same, so determinant क्या होगा, 0। directly we can write two rows are same then the determinant of a is equal to 0। or suppose we have 1 1 3 1 1 3 3 3 1, यहाँ पे हमारे दो कॉलम सेम है, then this answer is also 0। कोई भी दो रो या कॉलम सेम होते हैं तो आंसर हमारा क्या होगा, 0। नेक्स्ट सेम पेज पे प्रॉपर्टी नंबर 4, if each element of a row of a determinant is multiplied by any constant then its value gets multiplied by k। किसी भी रो को या कॉलम को एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करें, सपोज इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो इट्स 2 2 6 1 1 3 3 3 1, तो इसका आंसर क्या होगा, डबल ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो उस पूरे के साथ आपका आ जाएगा। नेक्स्ट इज रिमार्क ऑन द नेक्स्ट पेज 113, बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम। हम किसी भी वन रो या कॉलम से उसका क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ये हमारा है, यहाँ पे कॉमन इज 2, तो वी कैन टेक इट 2 कॉमन, 1 1 3 1 1 3 3 3 1, तो हम क्या ले सकते हैं, उसको कॉमन ले सकते हैं। सेकेंड रिमार्क इज इफ कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। प्रोपोर्शनल मतलब रेशो सेम हो, जैसे यहाँ पे हमने देखा इनका रेशो क्या आ रहा है, 2/1 2/1 6/3, तो इट्स 2 2 2। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी अगर हम इसको देखें, अगर प्रोपोर्शनल आ रहे हैं 2/1 2/1 2/1 सेम आ रहे प्रोपोर्शनल, देन उसका क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। नाउ कम एट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी 113 पेज पे, प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ सम और all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two terms then the determinant can be expressed as the sum of two determinant। suppose I am taking a plus b a plus b a plus a1 a2 plus b1 b2 a3 plus b3 and here are c1 c2 c3 d1 d2 d3, then we can write it as a1 c1 d1 a2 c2 d2 a3 c3 d3 plus इसके साथ बाकी का सेम रहेगा, इट्स b1 c1 d1 b2 c2 d2 b3 c3
D3। किसी भी रो में अगर ऐसे एडिशन है तो सिर्फ सम वाले को हमें अलग करना है, बाकी के रो या कॉलम क्या होते हैं हमारे सेम होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 6 ऑन पेज नंबर 114। इफ टू each element of any row or column of a determinant, then determinant the equimultiples of corresponding element of other row are added। हम उनको ऐड कर सकते हैं, मतलब ये हमने जैसे इनवर्स निकाला था मैट्रिक्स में, प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, R1 is equal to R1 प्लस डबल ऑफ R2, इस तरह के प्लस और माइनस वी कैन डू, इस तरह के ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इन एनी रो इन एनी कॉलम। देन हमारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई है। अब इसमें एक्सरसाइज 4.2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, या तो यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 6 का, श्योर है, तो आपको हर एग्जाम्पल करना है, हर क्वेश्चन करना है। Now see exercise 4.2 page number 119। First question is using the property of determinant and without expanding, expand नहीं करना है, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करनी है और उसको एक्सपैंड किए बिना we have to prove x y z a b c x plus a y plus b z plus c दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे, जहां एक पूरे कॉलम में एडिशन हो रहा है, तो सेपरेट करेंगे इसको, तो इट्स x y z a b c, बाकी का सेम रहेगा। इसमें पहले पूरी फर्स्ट उसको लेंगे x y z प्लस साइन है, देन ये वाले सेम रहेंगे x y z a b c, और सेकेंड वाला लेंगे a b c। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम सेम है, यहाँ पे हमारा सेकंड और थर्ड कॉलम सेम है, तो इट्स आंसर इज 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0। यू हैव टू राइट डाउन द रीजन कि इफ 2 रो और कॉलम आर सेम देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया। सेकेंड पार्ट, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b minus c, c minus a, a minus b, c minus a, a minus b, b minus c. We have to show this is equal to 0. Now apply the any property. It's if we add all the columns or all the rows, कोई भी रो ऑपरेशन कोई भी कुछ भी लगा सकता है, यहाँ पे जरूरी नहीं है जो मैं अप्लाई कर रही हूँ वही आप अप्लाई करो। सपोज मैं आई एम टेकिंग R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों में मैं तीनों रो को क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, यहाँ हमारा आएगा b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस a माइनस बी, एंड लास्ट वन इज c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। बाकी के दोनों रो सेम रहेंगे, b माइनस सी, c माइनस ए, c माइनस ए, a माइनस बी, a minus b, b minus c. Now see b, b, c, c, a cancel. C, a, b cancel. A, b, c cancel. It's 0, 0, 0. Remaining are same. तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर कोई भी एक रो या कॉलम हमारा कंप्लीटली 0 होता है देन इट्स आंसर इज 0। सो यू कैन डू अप टू क्वेश्चन नंबर 6। आपको ट्राई करना है फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 6 रहने दो, फर्स्ट टू 5 यू हैव टू ट्राई। नेक्स्ट क्लास में हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और वहां से हमारा एग्जाम में शुरू होता है, क्योंकि ये बहुत छोटे क्वेश्चन है जो एग्जाम में सिर्फ 1 मार्क में आएगा या नहीं आएगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।